بات کر لیتے ہیں شہر لاہور کے گرم ترین موسم کی۔ شہر میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے اور گرمی کی شدت نے شہریوں کو بے حال کر دیا ہے۔ دھوپ کی شدت میں اضافے سے موسم مزید گرم ہو گیا ہے۔ شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچ گیا ہے۔ موسم کا مزید احوال بتائیں گی سمرا فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی سمرا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، شہر لاہور کا موسم اس وقت شدید گرم ہے، گرمی کی لہر برقرار ہے۔ سورج اس وقت آگ برسا رہا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ سوا نیزے پر آ چکا ہے۔ سورج کی کرنیں تپش بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے شہری بھی نٹھال بے حال دکھائی دے رہے ہیں، پسینے سے شرابور ہیں اور اب یہ دعا کر رہے ہیں کہ شہر میں بادل برس پڑیں، کہیں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ جائے جو موسم میں تبدیلی لانے کا باعث بن سکے اور انہیں گرمی سے وقتی طور پر ریلیف مل سکے۔ لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ بارشوں کے امکانات معدوم ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں تک شہر لاہور میں بادل برسنے کے کوئی بھی امکانات ظاہر نہیں کیے جا رہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ شہر کا موسم گرم رہے گا، خشک رہے گا اور گرمی کی شدت اسی طرح سے برقرار رہے گی۔ نہ صرف دن کے اوقات میں درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، بلکہ رات کے اوقات میں بھی ہبس اور گھٹن محسوس کی جا رہی ہے اور جو ہوائیں بھی چل رہی ہیں وہ بھی گرم محسوس کی جا رہی ہیں۔ اس وقت بھی درجہ حرارت 44 ڈگری تک محسوس کیا جا رہا ہے اور گرم ہوا کے تھپیڑے منہ پہ پڑ رہے ہیں، جس کے باعث گرمی اور بھی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے۔ اور اگر بات کر لی جائے تو آج محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت 31 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکے گا۔ فضا میں نمی کا تناسب 22% تک ہے اور ہواؤں کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ گرمی کی شدت برقرار ہے۔ ہیٹ ویو کا الرٹ بھی محکمہ موسمیات نے جاری کر رکھا ہے اور ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں معمول سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں نظر آئے گا اور وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ درجہ حرارت میں آئے روز دن بدن اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر ہیٹ اسٹروک کے خدشات بھی بڑھ گئے ہیں اور اگر ہم ہیٹ اسٹروک کے علامات کے حوالے سے بات کر لیں تو بہت تیز بخار ہونا اور بیہوشی کی کیفیت طاری ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ بی پی کا لو ہو جانا اور اسی کے ساتھ ساتھ دیگر علامات ماہرین کی جانب سے بتائی جا رہی ہیں اور ایسے میں شہریوں سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں، جو بیرونی سرگرمیاں ہیں انہیں محدود رکھیں، زیادہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو یقینی بنائیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں۔ کیفین کے ساتھ جن مشروبات میں شوگر زیادہ ہوتی ہے ان مشروبات کو فی الحال ترک کر دیا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین کو، بزرگوں کو، بچوں کو خاص احتیاط کی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ باہر نہ نکلیں اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے باہر نکلنا بھی ہے تو اپنے سروں کو رومال یا کپڑے سے ڈھانپ لیں تاکہ دھوپ کی جو شدت ہے یا جو ریز ہیں اس سے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اور محکمہ موسمیات نے شہریوں سے یہی اپیل کی ہے، جہاں تمام اداروں کو الرٹ کیا ہے وہیں جو ہسپتال ہیں وہاں پر طبی عملے کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے اور شہریوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں کوئی علامات فیل ہوتی ہیں تو فوراً اپنے کسی قریبی ہسپتال سے رجوع کریں اور جو حفاظتی اقدامات بتائے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کو لازمی طور پر یقینی بنائیں۔ جی ہمارے ساتھ سمراتی موسم کا تفصیلی حوال بتائیں۔ اب آپ کو بتائیں نئے مالی سال کے لیے 7 ارب 41 کروڑ 57 لاکھ روپے ترقیاتی بجٹ تجویز تیار کر لیے گئی۔ پنجاب اسمبلی کی بجٹ تجاویز محکمہ خزانہ اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کو ارسال کر دی گئی ہیں۔ کیا تجاویز ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے راحت الشاہ۔ جی راحت الشاہ۔ بالکل جی، چونکہ بجٹ کے حوالے سے تمام محکموں کی جانب سے سفارشات اور تجاویز مرتب کر کے محکمہ خزانہ کو ارسال کی جا رہی ہیں۔ اس ضمن میں پنجاب اسمبلی نے بھی اپنے ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے جو سفارشات مرتب کی ہیں اور ان کو ارسال کر دیا ہے محکمہ خزانہ پنجاب کو، اور آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے 7 ارب 41 کروڑ 57 لاکھ روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ تجویز کیا گیا ہے مالی سال 2026 اور 27 کے حوالے سے۔ اس مالی سال کے حوالے سے مختلف جو اسکیمز کی جائیں گی اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کانفرنسنگ سسٹم کو اپگریڈ کرنے کے حوالے سے، جبکہ سیکیورٹی آلات کی خریداری کے لیے 1 ارب 41 کروڑ 99 لاکھ روپے مانگے گئے ہیں۔ اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کے لیے 1 ارب 6 کروڑ روپے کا بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کمیٹیز کی نئی عمارت کی تعمیر کے حوالے سے 80 کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جاری ترقیاتی اسکیموں کے لیے 4 ارب 13 کروڑ 51 لاکھ روپے رکھنے کی تجویز بھی اسی بجٹ میں شامل کی گئی ہے، جبکہ ایم پی اے ہاسٹل فیز 2 کی تعمیر کے لیے 2 ارب
52 करोड़ 67 लाख रुपए मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। MP हॉस्टल फेज़ 1 में पार्किंग सहूलियत के लिए 1 अरब 2 करोड़ 65 लाख रुपए रखने की तजवीज़ भी दी गई है। जबकि इसी तरह से पंजाब असम्बली में दीगर असूलियात जदीद डिजिटल और मौसर इदारा बनाने के हवाले से भी स्कीम शामिल हैं। जबकि सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और पार्लिमानी तहकीक के लिए वो मांगा गया जो कि 7 अरब 41 करोड़ से ज़ायद है। बहुत शुक्रिया राहुल शाद। हुकूमत पंजाब ने महकमा जेल खाना जात पंजाब के अफसरान के लिए इजाज़िये की मंजूरी दे दी है। महकमा जेल खाना जात के 11 अफसरान के लिए एक इजाफी तनख्वाह के बराबर इजाज़िये की मंजूरी दी गई है। इजाज़िया महकमे की बेहतरी अहम फ़राइज़ की कामयाब अंजामदही के एतराफ़ में दिया गया है। इजाज़िया हासिल करने वाले अफसरान में IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर शामिल हैं। आपको बताएं कि DIG इंस्पेक्शन नवीद रऊफ इजाज़िया हासिल करने वालों का हिस्सा हैं। इजाज़िया हासिल करने वालों में IG जुडिशल डॉक्टर मोहम्मद कदीर आलम भी शामिल हैं और इसी तरह AIG सिक्योरिटी मोहम्मद अंसर, डॉक्टर सप्तान मजहर भी इजाज़िया हासिल करने वालों में शामिल हैं। और डिप्टी डायरेक्टर हसन फाइक, सुपरिटेंडेंट जेल इम्तियाज़ अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद रशीद बद, ऑफिस सुपरिटेंडेंट शफकत अली और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल मोहम्मद अब्बास भी शामिल हैं। तो हुकूमत पंजाब की महकमा जेल खाना जात पंजाब के अफसरान के लिए इजाज़िये की मंजूरी। महकमा जेल खाना जात के 11 अफसरान के लिए एक इजाफी तनख्वाह के बराबर इजाज़िये की मंजूरी दी गई है। इजाज़िया महकमे की बेहतरी अहम फ़राइज़ की कामयाब अंजामदही के एतराफ़ में दिया गया है। इजाज़िया हासिल करने वाले अफसरान में IG जेल खाना जात पंजाब मियाँ फारूक नज़ीर शामिल हैं। माली साल के आखिरी 20 दिन जाली नंबर प्लेट्स, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों, टोकन टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर मोटर्स लाहौर शाहिद किलानी ने तमाम स्टाफ की टैक्स कलेक्शन के लिए छुट्टी बंद कर दी है। 6 ETOs की निगरानी में हफ्ते के 7 दिन सुबह 9 से 4 बजे तक नाकाबंदी के अहकाम जारी किए गए हैं और शहर के दाखिली खाची रास्तों और अहम शाहराहों पर नाकाबंदी होगी। डायरेक्टर मोटर्स की जानिब से कहा गया है। मजीद कहते हैं कि नाकाबंदी पर नॉन रजिस्टर्ड टोकन टैक्स डिफॉल्टर्स गाड़ियों को बंद किया जाएगा और 1 साल टोकन टैक्स नादहिंदगान के चलान करके कागजात जब्त किए जाएंगे। जाली नंबर प्लेट्स और नॉन कस्टम प्लेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 2 लाख से ज्यादा टोकन टैक्स नादहिंदा गाड़ियों को सिस्टम में ब्लॉक किया गया है और 11 माह में 20 अरब से ज्यादा की वसूलियां की गई हैं। आखिरी 20 दिन में 2 अरब से ज्यादा की वसूलियां मुतवक्के हैं। MPA साकिब चौधरी और अदाकारा मोमिना इकबाल का मामला पंजाब बार काउंसिल तक पहुंच गया। साकिब चौधरी और मोमिना इकबाल के वकला भी कार्रवाई की इज्जत में आ गए। साकिब चौधरी, मोमिना इकबाल के वकला को नोटिस जारी कर दिया गया है और कल तलब कर लिया गया है। एडवोकेट मियां अली इशफाक, रिमशा इकबाल को कल जवाब समेत हाजिर होने की हिदायत। चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी पंजाब बार काउंसिल अब्बास अली चौधरी ने वकला को तलबी के नोटिस जारी किए थे। MPA साकिब चौधरी, अदाकारा मोमिना इकबाल का ये मामला पंजाब बार काउंसिल तक पहुंच गया। साकिब चौधरी, मोमिना इकबाल के वकला भी कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। साकिब चौधरी और मोमिना इकबाल के वकला को नोटिस जारी कल तलब किया गया है। एडवोकेट मियां अली इशफाक और रिमशा इकबाल को कल जवाब समेत हाजिर होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बिजली टैरिफ और IPPs के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। नेपरा और IPPs के खिलाफ खातून शहरी इशफाक कामरान की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। जस्टिस अहमद अदीम अरशद ने इशफाक कामरान की आनी दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया है। दरख्वास्त गुजार ने बिजली के टैरिफ IPPs को दी जाने वाली कैपेसिटी पेमेंट्स को चैलेंज किया था। 6 सफ़ात का फैसला अदालती नज़ीर करार दिया गया है। मुआहिदे, पॉलिसीज बनाना इंतजामिया और पार्लियामेंट का काम है। अदालत मदाखलत नहीं कर सकती। ये फैसला किया गया है कि अदालत इक्तसादी, मालियाती या रेगुलेटरी पॉलिसीज के खिलाफ अपील फॉरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। पॉलिसी मामलात मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूटिव और मुत्तफ़िका का खुसूसी दायरा इख्तियार है। किसी पॉलिसी से सिर्फ इख्तलाफ करना अदालत से रजू करने का कानूनी जवाज़ नहीं बनता। IPP से रकूम की वापसी, फौजदारी कार्रवाई की इस्तदा अदालती जायजे के दायराकार से बाहर है। सेशन कोर्ट में केसेस से लाइलमी मुल्ज़िमान ने अदालत से रजू कर लिया। 100 के करीब अफराद को पुलिस नाकों पर अदालती इश्तिहारी होने का इल्म हुआ। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं शाहीन अतीक जी, अब आगाह कीजिएगा। जी, पुलिस नाकों पर इश्तिहारी होने का इल्म होने पर 100 के करीब मुल्ज़मान हैं जिन्होंने सेशन कोर्ट से रुजू कर दिया है और अदालत में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि हमारे चलान जो है आने के बारे में हमें इल्म नहीं था, लेकिन जब हमें पुलिस ने नाके पर रोका तो CR चेक की तो उसमें हमें इश्तिहारी जो है वो करार दे दिया गया। हमारी इस्तदा है कि हमारे
जो वारंट और जारी किए गए हैं उनको वापस लिया जाए और हमें मुतल्लिका अदालत में पेश होने की का हुक्म जो है वो दिया जाए। इस पर जो है वो अदालत ने मुलजमान की दरखास्तों पर फौरी तौर पर मुलजमान को मुतल्लिका अदालतों में हाजिरी लगवाने के लिए जो है वो भिजवा दिया है। नाकों पर जो पुलिस एहलकार खड़े होते हैं, जब वो किसी को रोकते हैं उनका नाम CR में चेक किया जाता है तो मालूम होता है कि वो मुलज़म तो इश्तिहारी है, जबकि मुलज़म का कहना है कि मैं तो अपने चालान के आने का जो है वो इंतज़ार जो है वो कर रहा था। इस पर जो है वो अदालत में मुलजमान जो है वो पेश हुए। यहाँ पर जो वकला हैं उनका कहना है कि हमारा अदालतों में जो समनों की तामील का सिस्टम है वो नाकस है, जिसकी वजह से मुलजमान को इल्म ही नहीं होता कि वो अदालतों में इश्तिहारी हो चुके हैं या अदालतों ने उनको तलब किया है। इस पर जो है वो अदालतों से इश्तिहारी हो जाते हैं। लिहाजा उनकी सदा है कि जो अदालती समनों की तामील का जो इंतज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, उनको फर्जी तौर पर जो है वो अदालतों में पेश ना किया जाए। औकात-ए-कार की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई दुकानों के ताजर परेशान हैं। 6 रोज गुजर जाने के बावजूद दुकानें ताहाल डीसील नहीं हो सकी। मुजाहिरीन का क्या कहना है, ताहिर जमील बता रहे हैं। जी ताहिर। जी बिल्कुल, शहर के ताजर औकातकार की खिलाफ वर्जी पर दुकानें सील होने पर परेशान है। चूंकि दुकानें तो 72 घंटों यानी 3 दिन के लिए सील हो रही हैं, लेकिन अब 6 दिन होने को हैं, अब तक इनकी दुकानें डीसील नहीं की जा रही। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों के ताजर हैं, मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की तजारत करते हैं। ये लोग यहाँ पर अभी आए हैं AC सिटी से, इन्होंने मुलाकात करने की कोशिश की, दुकान को डीसील करवाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ऐसी ये कह रहे हैं सीट पे मौजूद नहीं है और इनकी दुकानें इस वजह से अब डीसील नहीं हो रही। मजीद क्या तफसीलात है इन्हीं से जानेंगे। अच्छा जनाब बताइएगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं 6 दिन से दुकानें बंद हैं, तो अभी तक डीसील क्यों नहीं करवा पाए आप लोग? जी देखें, हम 3 दिन से लगातार इधर आ रहे हैं। बाबर साहब जो AC साहब हैं वो उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। उनके PA से हमने सवाल किया कि यार 3 दिन हो चुके हैं, 72 घंटे गुजर चुके हैं, तो अब तो ये ऊपर 3-4 दिन और मजीद ऊपर जा रहे हैं। 6 दिन से लोगों की दुकानें बंद। वो कह रहे बाबर साहब अगर 10 दिन नहीं आएंगे तो दुकानें नहीं खुलेंगी। सर ये तो जुल्म है। 10 दिन नहीं आएंगे तो 10 दिन दुकानें बंद बिल्कुल, उन्होंने बोला कि 10 दिन तक दुकानें नहीं खुलेंगी। अच्छा जनाब आप बताएं, आपकी किस चीज़ की दुकान है और कब डीसील हुई है? सर मेरा सलोन है, ये जनाजगाह चौक में लिटर रोड के ऊपर। जुमेरात से लेकर आज 6 दिन है, तो 3 दिन का उन्होंने कहा था ये वायलेशन है, आज 6 दिन है, अभी भी कोई तो 3 दिन तो पूरे हो गए, 6 डबल हो गए, दुगना हो गए, 6 दिन हो गए, तो अब क्यों नहीं डीसी हुई? वो कह रहे हैं जी अपना बाबर साहब आएंगे, DC साहब आएंगे तो वही करवा मतलब AC नहीं होगा सीट पे तो दुकान डीसी नहीं होगी। जनाब आप आगे आइएगा जरा, आपकी किस चीज की दुकान है और कब से सील हुई है? मेरी तकरीबन 3 तारीख की दुकान सील हुई है, 3 तारीख को रात को। मैं 4 तारीख को आया हूँ। अपना किस चीज की दुकान और कहाँ की दुकान है? बाबू साबू में। तो मैंने आके इनको कहा, कहते 3 दिन बाद आप आए, आपका काम हल हो जाएगा। 3 दिन के बाद मैं आया हूँ, तो उसके बाद सुबह आता हूँ, शाम हो जाती, फिर सुबह आता हूँ, अफसर नहीं आए, अफसर ने AC साहब नहीं आए, आएंगे आपको बता देंगे, साइन करेंगे। कार्रवाइयाँ 2, 4, 5 मिनट ऊपर होने पर भी की जा रही हैं और उसके बाद 72 घंटे पूरे होने के बाद भी अब 5वां और 6ठा दिन है। यहाँ पर कई दुकानदारों को कि अभी तक उनकी दुकानें डीसील नहीं हुई, जिसकी वजह से ताजर शदीद परेशान है और करते हैं हुकाम से कि उनके साथ ये जी ताहिर खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।